है लैरिंजल और हाइपोफेरेंजियल। ओरल कैविटी का भी हो तो भी शेयर कर दे, हमारे दिव्यांग को हेल्प हो जाएगा, बेचारा दुखी हो रहा है। ओरल कैविटी इसके वही है, और मतलब नॉर्मल ओरल कैविटी, लिम्फ नोड, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, एमएनडी। ये टॉय रोबोटिक क्या? ओपन नहीं रे। तू चादर रख, चादर रख, चादर रख, चादर रख, अच्छा बाद अच्छा। में बात। चल अभी ये खत्म। तो ट्रायल्स ऑफ दिस टॉर्स क्या है? पहले तो ओरोफेरेंजियल, Weinstein and colleagues reported favorable results for TORS-assisted radical tonsillectomy. So first surgery that we performed by TORS was by Weinstein, and it was tonsillectomy. As we know, tonsil is a part of oropharynx, and he promoted it is of acceptable morbidity. TORS helped in maximizing exposure while minimizing surgical morbidity, such as requirement for tracheostomy, pharyngotomy, and reconstructive procedure. Okay. Factors unsuitable for TORS: morbid obesity, microorganism, microstomia, craniopharyngeal abnormalities. So what is the evidence for oropharyngeal malignancies? This is more et al. Was prospective study, Almeida was retrospective, Park was systemic review, D. Almeida again came with systemic review, then Orator was RCT. So Moore did a prospective study of TORS in oropharyngeal cancers and promoted that TORS is a safe alternative with acceptable oncological outcome. D. Almeida, in his retrospective multinational institute, promoted 91% DFS, 94% overall survival, and local these all LR is above 90 in all. Park et al. In their systemic review and meta-analysis told that TORS has a better DFS, lower risk of free flap reconstruction, shorter time for decannulation of the tracheostomy tube, and shorter duration of hospital stay. Then the Almeida in this systematic review and meta-analysis comparing effectiveness of TORS with IMRT for early stage OPSCC told survival was similar between the two groups, with the difference being in their adverse events. Orator trial was the only RCT in oropharyngeal TORS. Their primary endpoint was swallowing-related quality of life at 1 year, MD Anderson dysphagia inventory score, superior swallowing-related quality score for RT, then TORS at the end. So they told RT has a better quality of life than TORS at 1 year. Oncological outcome did not differ between the groups. Limitations was sample size comparing patient receiving single modality treatment to those receiving multimodality treatment. Absence of information with regard to the margin based on the adjuvant treatment was given. Okay. So Orator trial में क्या पता चला? ओरेटर 1 and 2 दो आए ना? 2 नहीं मैंने इंक्लूड, इसमें नहीं इंक्लूड किया हुआ, 2 नहीं मुझे पता है। आया है क्या? मेरे को कुछ याद नहीं है श्योरली, पर मेरे को मुझे भी कहीं दिखा है मुझे Orator 2 मतलब कॉन्फ्रेंसेस का आया Orator 2 भी है। कॉन्फ्रेंसेस का याद आ रहा है। ओके, तो लैरिंजल के लिए क्या है? क्या हुआ ऊपर से नीचे? अच्छा दूसरा पेज। Laryngeal hypopharyngeal cancer skill. The first application of TORS for supraglottic cancer was described again by Weinstein in 2007. Evidence क्या है laryngeal Reza Pindranelli at a multi-center trial to assess the efficacy, safety, and functional outcome of TORS supraglottic tumor. Overall outcome was good, but 9.5% required TEG, 20% required temporary tracheostomy, 1% definitive tracheostomy. Aspiration pneumonia was observed in 23% of the patient with one death. Okay. And post-operative bleeding in 18%. Conclusion: TORS is safe and achieves good functional outcome
with fast recovery, but that is also presents as a risk of adverse event. Supraglottic laryngectomy requires rather stringent case selection T1, T2, T3. Tumors can be subjected to supraglottic laryngectomy, contraindications, paraglottic space invasion, and base of tongue muscle invasion. In hypopharynx, Park et al. Did observation study torus assisted hypopharyngectomy versus open surgery, no difference in overall survival and disease survival. Multiple case series of transoral robotic cordectomy for early glottic cancer have been reported. However, there is no comparison with the well-established standard endoscopic cordectomy. The worst reported complication was breach in kyphothyroid membrane ligament, leading to cervical emphysema. And transoral laryngectomy has emerged as a new, but it is not that much proven yet in salvage settings. And what else is rate of firing, not that. Parapharyngeal space is another. Most commonly, salivary gland can be done, followed and neurogenic tumors. O'Malley, इसके लिए टॉर्स ने 2007 में local control in their study was 100% at 29.9 months. Everyone is 2007 only ना ऊपर से अभी तक लिखा था हाँ almost. And they told TOR should be reserved for well circumcised tumors with intact fat planes with carotid and lateral placement, no advanced, should be very early disease. So in trials में सब में क्या है disease should be very early. Case selection is important and there is nothing superior, it is just comparable in almost all trials. Orator 2 मैंने नहीं देखा है, वो देखना पड़ेगा. Of advanced cancer patients suffer from weight loss and cachexia. ठीक है, तो अगर किसी का more than 10% of usual body weight या फिर more than 2.75 per month weight loss हो रहा है, ये poor prognosis for survival है. Minded, ये this is not the definition for cancer cachexia. It's just a fact कि poor prognosis होगा if somebody has lost more than 10% of their usual body weight. ठीक है. Now weight loss can cause डिस्ट्रेस एट 3 लेवल्स. ठीक है, पहला सिम्टम डिस्ट्रेस होगा पेशेंट को कि भाई मेरा इतना वजन क्यों घट रहा है. ठीक है, फटीग, डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल, ये सब होगा. दूसरा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी, उसका ऑन्कोलॉजिकल आउटकम भी खराब हो जाता है जैसे ही उसको वेट लॉस होता है. ठीक है, एंड सर्जिकल मॉर्बिडिटीज बढ़ जाती है. फिर व्हाट आर द कॉजेज व्हिच कॉज वेट लॉस इन कैंसर पेशेंट्स. ठीक है, तो इसमें 3 चीजें हैं. हम जो मोस्टली पढ़ेंगे वो पहले वाले हैं, साइटोकाइन्स, मेटाबॉलिक फैक्टर्स. इसके मेरा आईपैड उधर ही रह गया है. अच्छा, फोन से पढ़ा देना. ठीक है, यू कैरी. हाँ, वेट लॉस जो होता है वो मेनली 3 फैक्टर्स की वजह से होता है. ठीक है, तो जो कैंसर कैकेक्सिया में हम पढ़ते हैं वो है साइटोकाइन्स. ठीक है, साइटोकाइन्स क्या करते हैं, एक तो वो एनोरेक्सिया को इंड्यूस करते हैं जिससे पेशेंट खाए ना. ठीक है, दूसरी चीज उसका जो रेस्टिंग कैटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, एनाबॉलिज्म घट जाता है. ठीक है, ये है मेटाबॉलिक फैक्टर्स. उसके अलावा कुछ क्लिनिकल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि डिस्कूसिया कि उसको खाना खाने का मन नहीं करता. ठीक है, दूसरे हैं जीआई डिसफंक्शन, तीसरे हैं ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स. तो डिस्गोसिया क्या है, डिस्गोसिया क्यों होगा, बिकॉज देयर इज एन ऑल्टरेशन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड. ठीक है, व्हाई, बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज. जीआई डिसफंक्शन क्यों, क्योंकि कोई ना कोई सर्जरी रिलेटेड या कीमोथेरेपी रिलेटेड उसको डिसफंक्शंस रहेंगे, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया जो है वो कीमोथेरेपी रिलेटेड रहेगा. सर्जिकली उसको ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन, फिस्टुला बन सकता है, या फिर ट्यूमर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन या कंप्रेशन हो सकता है. ठीक है, तीसरी चीज साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट जिसकी वजह से उसको हो सकता है मुंह में छाले वगैरह रहे, डायरिया रहे, तो स्टोमेटाइटिस, म्यूकोसाइटिस, डायरिया, एंटेराइटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब जो है क्लिनिकल फैक्टर्स हैं. फिर साइकोसोशल फैक्टर्स जो होते हैं, साइकोसोशल फैक्टर्स जो हैं ये सिम्टम डिस्ट्रेस कॉज करते हैं. ठीक है, जैसे पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन. ठीक है, तो ये कॉजेज हैं वेट लॉस के. तो ये जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं for cancer cachexia syndrome, it is more than 25% loss of the lean body mass or more than 10 kg per meter square BMI than normal value. ठीक है,
सो लीन बॉडी मास का 25% लॉस हो जाना और या फिर बीएमआई में 10 का घटाव आना देन नॉर्मल वैल्यू इस कैंसर कैकेक्सिया सिंड्रोम। हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी का अगर 10% ही बॉडी वेट जो है रिड्यूस होता है उससे उसका पुअर आउटकम आएगा, ठीक है। सो दिस इज अगर किसी को कैंसर कैकेक्सिया हुआ है इट इज एसोसिएटेड विद द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है। सो फीचर्स क्या होंगे? वेट लॉस विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके अलावा एनोरेक्सिया, फटीग, अनीमिया और हाइपोएल्बुमिनिमिया, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं पैंक्रियाटिक नियोप्लाज्म्स में और अपर जीआई नियोप्लाज्म्स में। लीस्ट देखा जाता है हेड नेक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा और ब्रेस्ट में, ठीक है। हमने पढ़ लिया इसका पैथोफिजियोलॉजी। हमने पढ़ा था कि 3 फैक्टर हैं, एक ट्रीटमेंट रिलेटेड, एक साइटोकाइंस और एक साइकोसोशल, ठीक है। तो अब जो हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे इसमें मोस्टली साइटोकाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एक तो हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि एनोरेक्सिया क्यों होता है। साइटोकाइंस जो है वो एनोरेक्सिया क्रॉस करते हैं और उसके बाद रेस्टिंग कैटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं, एनाबॉलिज्म घटा देते हैं। वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे कि एपेटाइट पेशेंट की चली जाती है साइटोकाइंस की वजह से, ठीक है। और बाकी भी हमने फैक्टर्स पढ़े जिस वजह से उसकी एपेटाइट चली जाती है, ट्यूमर फैक्टर्स एज वेल एज होस्ट फैक्टर। रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, पेशेंट का मेटाबॉलिक रेट और साइटोकाइन मिल्यू बदल जाता है, ठीक है। कैसे कैसे बदल जाता है? देखो ये सारे फैक्टर्स रिलीज होते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने ऐसा किया था कि TNF, टी मतलब 3, इसमें तीनों होंगे। प्रोटियोलाइस, बेसिकली हर चीज टूटेगी, प्रोटीन टूटेगी, लिपिड टूटेगी, ग्लूकोज भी टूटेगा। बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, बाकी प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस होगा, ठीक है। तो TNF तीनों करता है, T फॉर तीनों। तो TNF जो है प्रोटियोलाइसिस भी करेगा, लाइपोलाइसिस भी करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा, ठीक है। इंटरफेरॉन अल्फा जो है ये 2 चीजें करता है, ये प्रोटियोलाइसिस करता है और लाइपोलाइसिस करता है, ठीक है। IL-1 में लिपिड आता, L आता है, इसलिए ये L नहीं करता, बाकी दोनों करता है। तो वो प्रोटियोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, लिपोलिसिस नहीं करता है। ऑल्सो IL-1 जो है अपने आप में IL-6 को इंड्यूस करता है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ IL-1 इंड्यूसेस IL-6 व्हिच इन टर्न मेक्स मोर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। देन P है प्रोटियोलाइसिस इंड्यूसिंग फैक्टर, तो ऑब्वियसली प्रोटीन तोड़ेगा। लिपिड मोबिलाइजिंग फैक्टर ऑब्वियसली लाइपोलिसिस करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। TNF तीनों, T फॉर तीनों करेगा, प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इंटरफेरॉन अल्फा 2 करेगा, कौन कौन से 2? प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, ठीक है। IL-1 L आता है, लिपिड नहीं करता, उसके अलावा बाकी दोनों करेगा। IL-1 IL-6 को भी इंड्यूस करता है। PIF प्रोटीन इंड्यूसिंग फैक्टर है, वो प्रोटियोलाइसिस करेगा। LMF लिपिड मोबिलाइजिंग फैक्टर है, लिपिड तोड़ेगा, ठीक है। अब ये जो IL-1 है ये जरूरी क्यों है? क्योंकि IL-1 पेशेंट का एपेटाइट भी घटाता है, ठीक है। देन देयर इज लास्ट में अ लेप्टिन फैक्टर। लेप्टिन फैक्टर क्या करता है? बेसिकली जब आप पेट भर खाना खा लेते हो तो आप में लेप्टिन इंड्यूस होता है, ठीक है। तो लेप्टिन लाइक फैक्टर रिलीज होता है, इससे क्या होता है, उसको लगता है कि मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैंने खा लिया, ठीक है। इससे उसका ग्रेलिन डिक्रीज होता है, NP अल्फा और CRF बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेप्टिन लाइक फैक्टर की वजह से ग्रेलिन, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख लगनी चाहिए, वो घट जाता है। इसकी वजह से भी पेशेंट की एपेटाइट डिक्रीज होती है। सो ऑल ऑफ दिस ऑल्सो, कैंसर जो है, कैंसर इज अ स्टेट ऑफ अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। तो अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स बढ़ते हैं, पेशेंट की प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, एडवांस स्टेज है और इंक्रीज ट्यूमर बर्डन की वजह से उसका रेस्टिंग एक्सपेंडिचर हमेशा हाई रहता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर कॉजेस कैंसर कैकेक्सिया सिंड्रोम, ठीक है। तो यही है जो हमने ऊपर पढ़ा। TNF तीनों करेगा, लिपोलिसिस, मसल डिग्रेडेशन, ग्लूकोज टर्नओवर। इंटरफेरॉन 2 करता है, लाइपोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। इंटरल्यूकिन 1 इसमें L है तो लिपिड नहीं तोड़ता, बाकी दोनों करता है। और उसके अलावा एपेटाइट घटाता है। उसका भी बोलो एक बार, इंटरफेरॉन अल्फा का भी बोलो, गामा। हाँ सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करता ना, तो हाँ, फ्रक्टोज इज सिमिलर टू ग्लूकोज। IL में L है इसलिए लाइपोलाइसिस नहीं करता, फ्रक्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करता, ऐसे याद रखो। हाँ, और L में लिपिड है तो वो लिपिड नहीं तोड़ता, सही, ठीक है। IL-1 IL-6 को रिलीज करता है और IL-6 इन टर्न कॉजेस मोर वेस्टिंग और प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है।
प्रोटीन इंड्यूसिंग फैक्टर स्केलेटल मसल डिग्रेडेशन करता है, LMF लाइपोलिसिस करता है, ठीक है ना। नाउ न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, ये हम कैसे करेंगे पेशेंट की स्क्रीनिंग। 3 इंडेक्स हैं, एक है प्रोग्नोस्टिक न्यूट्रिशनल इंडेक्स, एक है न्यूट्रिशनल रिस्क इंडेक्स और एक है पेशेंट जनरेटेड सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट PGSGA। इसमें सबसे यूटिलाइज जो होता है वो है PGSGA। पहले PGSGA देखते हैं, ठीक है। PGSGA में क्या है, इसमें 2 फैक्टर हैं, एक हिस्ट्री जो पेशेंट देगा, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। इसलिए सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है। इसमें पेशेंट आपको बताता है कि उसका कितना वेट लॉस हुआ है, वो इंटेंशनल वेट लॉस है या अनइंटेंशनल, कि भाई मतलब उसमें डाइटरी चेंजेस कितने थे और कितना अपने आप हो गया, फंक्शन लॉस कितना हुआ है, कितना वो काम करता था नहीं करता, कैसे कैसे सिम्टम आ रहे हैं, उसको वो किस लिए नहीं खा रहा, तो ये हिस्ट्री है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसका क्या देखोगे, आप पेशेंट को लेटाओगे, उसका 2 जगह पे उसका असाइटिस या एडीमा देखोगे। तो लेटाने के बाद उसको असाइटिस देखोगे, उसका एंकल एडीमा देखोगे, सेक्रल एडीमा देखोगे, फिर उसका मसल वेस्टिंग देखोगे और सबक्यूटेनियस फैट देखोगे। ये 5 चीजें देखोगे आप, ठीक है। तो बेस्ड ऑन हिज हिस्ट्री एंड ये 5 चीजें इन फिजिकल एग्जामिनेशन, आप इन 2 स्कोर्स को मिला के 3 चीजें निकालोगे कि या तो ये माइल्डली कैकेक्सिक है, मॉडरेटली मतलब माइल्डली मालनरिश्ड है, मॉडरेटली मालनरिश्ड है, सीवियरली मालनरिश्ड है। ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड वैलिडेटेड ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो PGSGA इज द मोस्ट यूटिलाइज्ड। बाकी के दोनों जो है प्रोग्नोस्टिक न्यूट्रिशनल इंडेक्स, इसमें वही यूज होते हैं जो यूजुअली हम लोग न्यूट्रिशन के लिए करते हैं, एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड। और एक अलग चीज है इसमें, डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मेजरमेंट, की बेसिकली पेरी ऑपरेटिव पीरियड में उसको कितने % कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, ठीक है। तो अगर उसको लेस देन 10% कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, दैट इज लो रिस्क। मोर देन 50% हुए हैं तो वो हाई रिस्क। तो हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के बेसिस पे अगर उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेरी पीरियड रहा है तो इस वजह से उसने खाना वाना बंद कर दिया हो, ठीक है। तो यह है प्रोग्नोस्टिक न्यूट्रिशनल इंडेक्स। दूसरा है न्यूट्रिशनल रिस्क इंडेक्स। इसमें क्या है, एल्ब्यूमिन, वेट कौन सा, करंट वेट और यूजुअल वेट कितना होता है, और सिर्फ एल्ब्यूमिन और वेट के बेसिस पे उसने उसको वेल नरिश्ड और मैलनरिश्ड के बीच में डाल दिया, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब आप उसको करोगे ट्रीटमेंट में वही तीनों, कि पहली चीज न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करोगे, दूसरा उसको खाना खिलाओगे, तीसरी फार्मेकोथेरेपी, ठीक है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में क्या है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में आप पेशेंट को बात करोगे कि भाई तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, उसको क्या दिक्कत है, उल्टियां हो रही है इसलिए नहीं खा रहा, लूज मोशन है इसलिए नहीं खा रहा, ये सब बातें उससे करके उसकी दिक्कत जान के काउंसलिंग करने के बाद वो जब आपको अपनी दिक्कत बताएगा कि भाई मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ, तो उसकी सारी दिक्कतों के इलाज करने की कोशिश करोगे कि इसको उल्टी हो रही तो एंटीमेटिक दे दो, डायरिया हो रहा है तो एंटीमोटिलेट दे दो, फाइबर दे दो, लैक्सेटिव दे दो, ये सब दे दो। पैंक्रियाटिक कैंसर है तो एंजाइम प्रेपरेशंस दे दो। ऑल्सो एंटी डिप्रेसेंट्स इज अ बिग पार्ट बिकॉज 25 to 40% of these patients will be in depression and that can be a cause of their malnutrition. तो all of this comes under nutritional counseling, कि बैठ के उससे बात करो कि भाई तू खाना क्यों नहीं खा रहा, ठीक है। Then comes pharmacotherapy. इसमें सिर्फ कुछ ही एजेंट्स हैं that have been proven कि उससे जो है वेट बढ़ता है। 2 हैं, एक है मेजेस्ट्रॉल एसीटेट और एक है मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये दोनों प्रोजेस्टेशनल एजेंट्स हैं, ठीक है। तीसरी चीज है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, चौथी चीज है साइप्रोहेप्टेडिन जो कि एंटी हिस्टामिनिक है बट इससे वेट बढ़ता है, ठीक है। तो ये 4 ही चीजें हैं, उनमें से 2 प्रोजेस्टेशनल एजेंट है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एक एंटी हिस्टामिनिक है, ठीक है। तीसरी चीज है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये जरूरी है, ठीक है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी जो पेशेंट माइल्डली मालनरिश्ड है उसको आपको इतना हाइपर होके खाना देना शुरू नहीं करना, ठीक है। So this is indicated only in patients who are moderately to severe malnourished, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को बहुत ही एक माइल्डली और नॉर्मली नरिश्ड पेशेंट को अगर आप पैरेंटल न्यूट्रिशन और ये सब न्यूट्रिशन देना शुरू कर दोगे तो it will in fact harm the patient. So you have to assess what level of malnourishment he is in. If he is moderately to severe malnourished, you will therapeutically provide him nutritional support only if he is moderately to severely malnourished, ठीक है। You will consider therapeutically nourishing him when you see that he is having the anticipated inability to take food. कब, अगर वो
सर्जिकल पेशेंट है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर्जरी होने से अगले 7 से 14 दिन तक वो खाना नहीं खा पाएगा तब, और अगर नॉन सर्जिकल पेशेंट है तो अगले 14 दिन तक वो खाना नहीं खा पाएगा या कोई ना कोई दिक्कत होने वाली, ही इज नॉट गोइंग टू बी एडिक्वेटली नरिश्ड इन द कमिंग 7 to 14 days in a surgical patient and more than 14 patients in a non-surgical patient, you will provide him a nutritional support. ठीक है, ये फार्मेकोथेरेपी वही हमने जो पढ़े 3 एजेंट प्रोजेस्टेशनल में है, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट और मेजेस्ट्रॉल। ये करता क्या है, हमने बोला था एनोरेक्सिया सबसे ज्यादा क्या कॉज कर रहा है, IL-6, IL-1 IL-6 को रिलीज करता था, IL-6 जो है एनोरेक्सिया कॉज करता था, तो इसने क्या किया, IL-6 की ही ऑल्टरेशन कर दी। इससे क्या हुआ, वेट गेन और इम्प्रूव्ड एपेटाइट। इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट आता है वो 8 हफ्ते के अंदर आता है। ठीक है, स्टेरॉइड्स क्या दे सकते हो, डेक्सामेथासोन दे दो 1.5 mg तक मैक्सिमम QID। इससे क्या होता है, पेशेंट की एपेटाइट इंप्रूव होती है, न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज मोर हार्मफुल बिकॉज इट कॉजेज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेट कैल्शियम लॉस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस और इम्यूनोसप्रेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आता है साइप्रोहेप्टेडिन, दैट इज एन एंटीहिस्टामिनिक एंड सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। ये डायरिया को बेसिकली कार्सिनोइड सिंड्रोम्स में यूज करते हैं, डायरिया इंप्रूव करता है, ऑल्सो वेट लॉस को रिवर्स करता है। ठीक है, नाउ ड्रग्स विद नो प्रूवन रोल हैव नो बेनिफिट, उनमें क्या क्या आ जाते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट, साइटोकाइन डायरेक्टेड थेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट्स, पेंटॉक्सीफाइलिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमने क्या पढ़ा था कि एक माइल्डली मैलनरिश्ड या ऑप्टिमली नरिश्ड को आपको थेरेप्यूटिकली नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड करनी है। आपको किसको प्रोवाइड करनी है, मॉडरेटली टू सीवियरली मैलनरिश्ड पेशेंट को, या फिर उस इंसान को जो आपको पता है अगले 7 से 14 दिन खाना नहीं खा पाएगा इन अ सर्जिकल एंड मोर देन 14 डेज इन अ नॉन सर्जिकल पेशेंट। यही करने से इन्हीं लोगों में आउटकम देखा गया कि बेटर हुआ है। ठीक है, तो एडिक्वेटली नरिश्ड पेशेंट में अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करोगे तो इट माइट हार्म द पेशेंट। ठीक है, सो 3 चीजें, अगर आप किसी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, यू हैव टू सी दी ऑप्टिमल रूट, ऑप्टिमल टाइम एंड ऑप्टिमल टाइप ऑफ नरिशमेंट। ठीक है, सो ऑप्टिमल रूट हमें पता है बेस्ट ओरल है, नहीं दे सकते तो एंट्रल, नहीं दे सकते तो पैरेंट्रल दो। ठीक है, ऑप्टिमल टाइप ना, ये सबसे जरूरी है कि हम ना हमेशा कोशिश करेंगे उसे एंट्रल फीड दे। ठीक है, अगर उसको आप एंट्रल फीड नहीं दे पा रहे हो तो पैरेंट्रल उसको देना चाहोगे, बट दे ऑलवेज से दैट यू ट्राई टू पुश पैरेंट्रल फीड्स टू एज मच एज पॉसिबल, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एंट्रल फीड अगले 4-5 दिन नहीं शुरू कर पाओगे, तब भी आप उसको जो है ना पैरेंट्रल फीड शुरू ना करो अप टिल 7th डे। यू वांट टू डिले द पैरेंट्रल न्यूट्रिशन टिल 7th डे। अगर 7th डे के बावजूद भी आप उसे न्यूरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो थक हार के उसे पैरेंट्रल न्यूट्रिशन शुरू करोगे। व्हाई? Because they say that if you start parenteral nutrition early, you decrease his outcomes. उसको infection बढ़ जाता है, morbidity बढ़ जाती है, hospital stay बढ़ जाता है. So you want to delay the parenteral nutrition till 5th day, even if that means delaying the enteral nutrition. ठीक है? So you will always want to initiate with enteral nutrition. If you are able to start with enteral nutrition, good. If you cannot, you will still want to wait till you start enteral nutrition till the 7th day. 7th day पे जाके आप उसका parenteral nutrition शुरू कर सकते हो. So you want to push it till the 7th day to improve his outcomes. ठीक है? So what is the optimal type? ये हमने पढ़ लिया था कि enteral देंगे तो अगर हम उसको फॉर्मूला फीड दे रहे हैं ओरली तो हम उसको सिलेक्टिव फॉर्मूला फीडिंग देंगे। हम उसको देंगे एक ऐसी फीड जिसमें आर्जिनिन, ग्लूटामिन, आरएनए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो। ये सब करने से क्या होगा, ये सब जब हम उसको देंगे उसका इन्फेक्शन रेट कम होगा, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे और आईसीयू स्टे होगा। ठीक है, नाउ क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं। अगर आप उसे एंट्रल फीड देते हो तो आप एनजी डालते हो या एनजे डालते हो या गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब डालते हो या फीडिंग जे डालते हो। क्यों देते हैं एंट्रल? क्योंकि ये ज्यादा फिजियोलॉजिकल है, कम कॉम्प्लिकेशंस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कम होता है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या होते हैं, आपने ट्यूब डाली, उसके ट्यूब के ब्लॉकेज होने का, डिसलॉज होने का, ट्यूब साइड डालने के, सेल्यूलाइटिस होने का और फूड इंटॉक्सिकेशन होने के जो है चांसेस हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, आइलेस, डायरिया, जीआई ब्लीड या हाई आउटपुट फिस्टुला, उसको मत दो एंट्रल फीड। ठीक है, नाउ कैलोरी कंसंट्रेशन, इसको याद रखना है। पैरेंटल न्यूट्रिशन और एंट्रल न्यूट्रिशन में 10 का फर्क है। ठीक है, सो कैलोरी कंसंट्रेशन जो एंट्रल फीड है उसमें पर ml 1 से 2 कैलोरी है। ठीक है, और प्रोटीन और उसमें प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट दोनों है।
कार्बोहाइड्रेट, हम एंट्रल फीड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो हम पेशेंट को फॉर्मूला फीड देते हैं ना, वो मोस्टली हाइपर ऑस्मोलर होता है, ठीक है, ज्यादा शुगर वुगर होती है उसमें, और लिपिड जो है आइसोलिपिड होता है वो। तो अगर ये हाइपर ऑस्मोलर फीड है, आप उसको जेजुनम में देना नहीं पसंद करोगे क्योंकि उससे उसका डायरिया हो जाएगा एकदम से। तो इन्फ्यूजन रेट जो यूजुअली हम वार्ड में शुरू करते हैं 30 ml पर आवर, उससे शुरू करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू मेक द डेली रिक्वायरमेंट। फ्लशिंग ऑफ ट्यूब्स करेंगे आफ्टर एवरी फीड, ट्यूब केयर सिखाएंगे उसको, ठीक है। पैरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये मेरे से गलती हुई थी, दोनों का जो है 1 किलो कैलोरी पर ml ही है, ठीक है। एंट्रल न्यूट्रिशन और पैरेंटल न्यूट्रिशन बोथ ऑफ देम आर 1 किलो कैलोरी पर ml। ओके, पैरेंटल न्यूट्रिशन कब देना है? जब आप एंट्रल फीड नहीं दे सकते या दी पर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। और सीवियरली मैलनरिश्ड पेशेंट जो कि सर्जिकल कैंडिडेट है, सर्जिकल कैंडिडेट वाले पेशेंट को जो कि सीवियरली टू मॉडरेट टू सीवियरली मैलनरिश्ड है, आपको पता है अगले 7 से 14 दिन आप उसको कुछ नहीं दोगे, ठीक है। तो आपको अगर उसको पहले सर्जिकली पहले देना है तो आप उसे प्री ऑपरेटिव पीरियड में 7 to 14 डेज प्रायर टू सर्जरी पैरेंटल न्यूट्रिशन शुरू कर सकते हो। ये देने से फायदा क्या होता है? उसका वेट बढ़ता है, मोस्टली फैट कंपोनेंट, वो हाइपरटोनिक होता है, जो हमने वो भी पढ़ा था, एंट्रल भी यूजुअली हाइपरटोनिक ही होता है, पैरेंटल भी यूजुअली हाइपरटोनिक ही होता है। इसकी भी कैलोरी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, 1 कैलोरी पर ml, एंट्रल की भी 1 कैलोरी पर ml थी। तो हम जो 2.5 लीटर का टीपीएन का बैग लटकाते हैं उससे उसका हो जाता है, उससे 2500 कैलोरीज मिल जाते हैं, ठीक है। ये भी एडवाइजेबल है कि आप उसे 500 ml ऑफ लिपिड इमल्शन दो पर डे, जिसमें कि एसेंशियल फैटी एसिड्स और लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। एंड नो फॉर्मूला इज आइडियल, बट व्हाट डू यू वांट टू कीप as a aim? You want him to take 1 gram per kg per day of protein. You want him to take 25 kilocalorie per kg per day for non-protein caloric requirements, and 1 to 2 gram per day essential fatty acids, 1 to 2 gram per kg per day. So protein और lipid almost same है, और नॉन प्रोटीन कैलोरिक रिक्वायरमेंट इज 25 किलो कैलोरी पर डे, और सम ट्रेस एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये एक बार डेविटा के चार्ट देख लो, ये मैंने तुम्हें आपको बताया था, ठीक है। तो कैकेक्सिया के जो है 3 स्टेजेस है, प्री कैकेक्सिया, कैकेक्सिया और रिफ्रैक्टरी कैकेक्सिया, ठीक है। तो दे से कि ये कैसे आप डिवाइड करते हो on the basis of weight loss. So when weight loss is less than 5%, it is pre-cachexia, उसमें anorexia और glucose intolerance होता है। So pre-cachexia जो है ना, सबसे optimal time है प्री इंटरवेंशन करने का, कि अगर आपको कुछ करना है ना तो इस टाइम पे कर लो, क्योंकि एक बार वो cachexia में चला गया तो उसके बाद तो आप तभी उसको थेरेपेटिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करना पसंद करते हो जब वो मॉडरेटली टू सीवियरली malnourished हो, ठीक है। cachexia कब है? जब उसको मोर देन 5% वेट लॉस है, या फिर सार्कोपीनिया हो गया है, BMI जो है लेस देन 20 kg पर मीटर स्क्वायर हो गया है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो गया है, खाना वाना बंद हो गया उसका, ठीक है। तो इस टाइम पे उसको सिम्टम स्पेसिफिक इंटरवेंशन देने हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, मेटाबॉलिक इंटरवेंशंस करने हैं। रिफ्रैक्टरी कैकेक्सिया क्या होता है? रिफ्रैक्टरी कैकेक्सिया सबसे खराब स्टेट है, ठीक है। ये ऐसा कैकेक्सिया है जिसमें कैंसर विल बी रिफ्रैक्टरी टू थेरेपी, जो मर्जी करो कुछ नहीं कर सकते आप। सो इट इज अ प्रो कैटाबॉलिक स्टेट, एंड इस स्टेट में पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस बहुत खराब हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट कर पाओगे, इसमें नरिशमेंट देके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू सेव द पेशेंट। साइको सोशल सपोर्ट देना है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना, और इस टाइम पे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है दैट वाज गोइंग टू बी लेस देन 3 months, ठीक है। फिर ये जो हमने पढ़ा था, हमने ये फैक्टर्स पढ़ लिए थे, किसका क्या होता है ये हमने वर्क पढ़ लिया था उस चार्ट में, ठीक है। ये न्यूट्रिशन असेसमेंट टूल्स हमने जो पढ़े थे, इसमें सबसे अच्छा वाला पेशेंट जनरेटेड सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट है, बाकी सब में भी छोटे छोटे जो भी इंडेक्स हमने पढ़े वो हैं। फिर ये है सबसे जरूरी कि ठीक है, पेशेंट आपके पास आता है इनिशियल प्रेजेंटेशन, तो आप फॉर्मल न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग करते हो उसकी, ठीक है। स्क्रीनिंग करने के बाद आपको पता चलता है कि वो मैलनरिश्ड है या एडिक्वेटली नरिश्ड है, ठीक है। तो अगर तो वो एडिक्वेटली नरिश्ड है तो आप उसको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करोगे, और एज एंड व्हेन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होंगे तो वो चाहिए होगा, उसको बार बार न्यूट्रिशनली आप असेस करते रहोगे, ठीक है। अगर वो मैलनरिश्ड है, ठीक है, तो अब आपको देखना है कि पहली बात तो उसकी सर्जरी होनी है, कीमोथेरेपी होनी है, या कुछ नहीं होना है, ठीक है। अगर उसका कुछ नहीं होना है और वो पेशेंट खा नहीं पा रहा है, तो अब आप देखो उसकी हालत क्या है। अगर ही कैन लिव अप टू मोर देन 40 days, यू कैन कंसिडर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। बट अगर आपको लगता है हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लेस देन 40 days, वो पोस्ट कैकेक्सिया वाला जो हमने टेबल पढ़ा था ना, कि अब उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही कम है, तो अब आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके कुछ नहीं कर सकते, ही इज गोइंग टू डाई,
प्रोवाइड हिम विद पैलिएटिव केयर। अगर आपको उसको सर्जरी करनी है तो हमने ये पढ़ा था कि प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल प्रोवाइडिंग इज बेटर। तो 7 to 14 डेज तक आप उसको प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हो। पोस्ट ऑपरेटिव सपोर्ट आप देते हो तब अगर उसको प्रोलॉन्ग्ड इनएडिक्वेट इनटेक रहने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप विद इन 7 to 14 डेज उसको एंटरली जो है वो you would want him to start enterally. If he is not able to start enterally, you will consider parenteral requirements after 7 days. ठीक है। एंड सर्जिकल पेशेंट में अगर आपको लगता है 7 to 14 डेज तक पेशेंट खुद से नहीं खा पाएगा तब आप उसको न्यूट्रिशनली शुरू करते हो। ठीक है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, न्यूट्रिशन सपोर्ट वही, अगर मोर देन नॉन सर्जिकल में मोर देन 14 डेज, सर्जिकल में 7 to 14 डेज। ठीक है। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट इफ प्रोलॉन्ग्ड इनएडिक्वेट इनटेक इज एक्सपेक्टेड। ठीक है। फॉर्मूला फीड डालते हो उसमें आर्जिनिन, न्यूक्लिक एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ग्लूटामिन होना चाहिए। हो गया। मैं कर रहा हूँ सबसे निकाल के बैठ, दिख रहा है ना सबको ये? यस दिख रहा है? यस 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 स्टार्ट। ओके, सो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ट्यूमर का माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, और So it is पिक्चर देख के पता चल रहा है चंद्रा। नहीं, चंद्रा नहीं है। इट इज इकोसिस्टम around the tumor which leads to continuous interaction between the tumor and adjacent cells leading to initiation of tumor, sustainability, growth, invasion, METs। जो भी ट्यूमर कर सकता है वो सब में हेल्प करता है। ठीक है ना? इनिशिएशन, ग्रोथ, सर्वाइवल, इन्वेजन, मेटास्टेसिस सब में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सेल रहती है? माइक्रो एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स द ट्यूमर सेल इज नोन एज द ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या क्या कंपोनेंट है? सेलुलर कंपोनेंट, कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट्स, ओके, ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेज, एडिपोसाइट्स, और जो भी मतलब सेल, ये तो 3 नाम अलग हैं जो अपन को अलग से पढ़ने पड़ रहे हैं। उसमें भी मैक्रोफेज अपन जानते ही है। जो सेल अपने सारे दिमाग में आ रही ना, मैक्रोफेज, टी सेल, बी सेल, एनके सेल, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल, न्यूरो एंडोक्राइन सेल, सब सेल का नाम लिख दो, वही सेलुलर कंपोनेंट है इसके। और लास्ट में लिख दो कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, एंड एडिपोसाइट, ये 2 अलग हैं। ठीक, ये कंपोनेंट हो गए। फंक्शन क्या है? इनिशिएशन ऑफ ट्यूमर, ग्रोथ, सर्वाइवल, इन्वेजन, मेटास्टेसिस सब करवाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये सब इंटरेक्शन अपन समझ लेंगे तो कैंसर के टारगेट बना पाएंगे, ड्रग्स बना पाएंगे, कैसे ट्रीट करना है वो प्लान कर पाएंगे। ये इसका सिग्निफिकेंस है। सो माइक्रो एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स द ट्यूमर सेल इज नोन एज ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। देयर इज ए कंटिन्यूअस डायनेमिक इंटरेक्शन विद TME एंड द ट्यूमर सेल्स causes initiation, development, tumor METs. The non-malignant cells in TME stimulate cell proliferation, support the cancer cells metabolism, promote angiogenesis and help in vascular invasion and distant metastasis। तो वही चीज अपन बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अभी तक। अभी क्या क्या कंपोनेंट है अपन ने ऊपर टेबल देख लिया। अब इन कंपोनेंट्स का क्या काम है वो देख लेते हैं। पहला है कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, क्या होता है ये? जो नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट रहता है उसमें एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी से वो बन जाएगा कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, और ये बनता क्यों है? बिकॉज ऑफ वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये सब मिलके ऑर्डिनरी फाइब्रोब्लास्ट को बना देते हैं कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट। क्या क्या करेगा कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट? एंजियोजेनेसिस। तो अपन सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। फर्स्ट, ट्यूमर ग्रोथ। सबसे पहले क्या कराएगा? प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा ट्यूमर ग्रोथ कराएगा। ट्यूमर है तो ट्यूमर की ग्रोथ होगी पहले। ग्रोथ होने के बाद वो एंजियोजेनेसिस कराएगा, तो VEGF और FGF2, उसकी वजह से एंजियोजेनेसिस होगा। तो और ट्यूमर का साइज बढ़ जाएगा, वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगा, वेसल आ गई तो फिर इन्वेजन करेगा वो। सो इट विल लीड टू ट्यूमर इन्वेजन बाय सीक्रेटिंग सेवरल MMPs। इन्वेजन कराना है तो अपने को मैट्रिक्स को डैमेज करना पड़ेगा। मैट्रिक्स डैमेज करना है तो मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेजेस चाहिए होंगे, तो उसकी हेल्प से ट्यूमर इन्वेजन कराता है। एंड फोर्थ बचता है METs।
ग्रोथ इन द मेटास्टेटिक साइट, तो जहां भी ये सेल डिस्क्लोज होके जाएंगी वहां भी तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि वो ग्रो कर पाए, नहीं तो इम्यूनिटी खत्म कर देगी इम्यून सेल्स। तो वहां जाके भी ये वेरियस साइटोकाइंस सीक्रेट करवाएगा और सस्टेन कराएगा ग्रोथ को मेटास्टेसिस की। तो ये कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट के काम है। क्या क्या काम है? पहला ग्रोथ, एंजियोजेनेसिस, ट्यूमर इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट क्या कराता है? सर्वाइवल ऑफ कैंसर सेल्स बाय इवेडिंग द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम इवेजन में हेल्प करता है। कैंसर मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है, जो भी हॉलमार्क पढ़े ना अपन ने वो सारा करा रहा है। कैंसर के सेल को मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर रहा है, इम्यून सिस्टम को इवेड करवा रहा है, ईएमटी करवा रहा है। ठीक है, ईएमटी में भी हेल्प कर रहा है। तो ये बहुत सारे काम करता है, बहुत अच्छा सेल है ट्यूमर के लिए, कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट। सेकंड आता है एडिपोज सेल। एडिपोज सेल क्या करता है? ये भी एक तो ईएमटी में हेल्प करता है, दूसरा एमएमपी बनाता है। तो एमएमपी आएगा तो इन्वेजन में हेल्प करेगा। ठीक है, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस में हेल्प करेगा। और ऑल्सो दे सीक्रेट एडिपोसाइड है तो लेप्टिन। लेप्टिन विल हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स। ठीक है, दो सेल हो गई। कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट हर एक्शन में हेल्प कर रहा है। एडिपोज सेल्स, एडिपोसाइट्स जो होते हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं? इन्वेजन, मेटास्टेसिस में और ग्रोथ में। न्यूरो एंडोक्राइन सेल आ गई। फिर न्यूरो एंडोक्राइन सेल एक तो जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करके रखेंगी, टी सेल को और उनको कि भाई रुक जाओ, बढ़ने दो ट्यूमर को। ठीक है, तो ट्यूमर प्रोमोशन में हेल्प कर रही है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। एंड दूसरा जो कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट है उनको भी ये एक्टिवेट कर रही है अपना सीरोटोनिन सीक्रेट करके कि तू तेरा काम और बढ़ा भाई। ठीक है, तो दो काम कर रहे हैं, एक तो इम्यून सिस्टम को रोक के रख रहे हैं, दूसरा कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। और फिर आते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करते हैं? प्रोमोटिंग एक्टिविटी, ट्यूमर प्रोमोटिंग एक्टिविटी, वही एंजियोजेनेसिस और इन्वेजन, मेटास्टेसिस, इन सब में हेल्प करता है मैक्रोफेज भी। टी लिम्फोसाइट भी ये बोल रहे हैं कि प्रो ट्यूमर जेनिक होता है, मतलब ट्यूमर बनने में हेल्प करता है। कैसे करता है ज्यादा कुछ लिखा नहीं। बी लिम्फोसाइट ऐसा ही ट्यूमर प्रोमोटिंग एक्टिविटी लिख देना है। ठीक है, एन के सेल्स ये कोई प्रमोशन में हेल्प नहीं करती है, उल्टा डैमेज ही करती है ट्यूमर को। परफोरिन सीक्रेट करती है, परफोरिन्स, और डैमेज करती है, बट ये होती है ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में, इसलिए अपने को बताना है। देन वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, तो ये सेवरल ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहे हैं, जैसे VEGF, जो भी GF है, प्लेटलेट, फाइब्रोब्लास्ट, वेस्कुलर, ये सब एंडोथेलियल सेल की ग्रोथ बढ़ाएंगे। और एंडोथेलियल सेल एंड पेरिसाइट्स विल हेल्प इन एंजियोजेनेसिस और मेटास्टेसिस। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ये समरी। कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट, ये अपने मार्कर तो काम के नहीं है। ठीक है, देखना हो तो एक्टिन और विमेंटिन याद रख सकते हैं। काम क्या करवाएगा? सारे वही, ग्रोथ के बाद एंजियोजेनेसिस, फिर इन्वेजन, उसके बाद मेटास्टेसिस, सारे काम कराएगा। ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेज भी इन्वेजन, एंजियोजेनेसिस, मेटास्टेसिस करवाते हैं। एडिपोसाइट एक तो ग्रोथ करवाएगा, दूसरा एमएमपी सीक्रेट करवा के इन्वेजन में हेल्प करेगा। न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगी, टी सेल्स को, और CAF का एक्टिविटी बढ़ाएगी। टी लिम्फोसाइट प्रो ट्यूमरोजेनिक होते हैं। बी लिम्फोसाइट ट्यूमर सर्वाइवल प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहे हैं। एन के सेल्स खत्म करती हैं ट्यूमर को, किलिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं एक। इसमें सबसे पहले ये ट्यूमर है सेंटर में, पहला है कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट। क्या क्या काम कर रहा है? ग्रोथ बढ़ा रहा है, इधर मतलब इधर एरो जा रहा है, ग्रोथ बढ़ा रहा है। ये एंजियोजेनेसिस बढ़ा रहा है, इधर से एंजियोजेनेसिस, इधर एमएमपी सीक्रेट करके इन्वेजन बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये इसके काम है, सारे काम करता है ये। 2 नंबर पे सेल आती है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट भी इधर से वेसल को बढ़ा रहा है, इधर ग्रोथ को बढ़ा रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर ये मैक्रोफेज को यहाँ लाके पटक सकते हैं, मैक्रोफेज। ये भी एंजियोजेनेसिस बढ़ाता है, इन्वेजन को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स, तो एक तो ये 5ST सीक्रेट करके CAF को बढ़ा रही है,
ग्रोथ बढ़ा रही है और टी सेल को सप्रेस कर रही है कि रुक जाओ भाई, इसको मत मारो। ठीक है, न्यूरोएंडोक्राइन सेल होगी। बी सेल, टी सेल जस्ट वन लाइनर्स लिखने, हेल्प इन ट्यूमरोजेनेसिस। एनके सेल्स तो खत्म ही कर रही है, परफोरिन सिक्रीट करके बैंड बजा रही है ट्यूमर का। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या समरी हो गया, क्या डेफिनेशन हो गया? ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड इकोलॉजिकल सिस्टम दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हर एक्शन में, इनिशिएशन, सर्वाइवल, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस ऑफ ट्यूमर। कैसे कैसे करता है अपन ने देख लिया, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स क्या क्या होती हैं, तो जो भी अपने को नाम याद है, मैक्रोफेज, टी सेल, बी सेल, एनके सेल, उसके बाद सीएफ, एडिपोसाइट्स एंड वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स। फंक्शन क्या रहते हैं, तो ट्यूमर के शुरू से ले एंड तक जो भी काम हो रहा है वो सब में हेल्प करता है ये। ट्यूमर इनिशिएशन, उसके बाद ग्रोथ, सर्वाइवल, इन्वेजन, मेटास्टेसिस, सब में हेल्प करेगा। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट हर एक्शन में हेल्प करता है, सब में आंख बंद करके लिख देना है। ठीक है, सेकंड आता है एडिपोज सेल। एडिपोज सेल है तो एक चीज तो अपने लेप्टिन ध्यान ही है, ग्रोथ में हेल्प करेगा। दूसरा एमएमपी सिक्रीट करके इन्वेजन में हेल्प करेगा। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स एंडोक्राइन से रिलेटेड है, तो एक तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखेगा, दूसरा कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेज, टी सेल, बी सेल, इनमें सीधा लिख देना है, इन्वेजन मेटास्टेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल तो इसका एंटी है, और एंडोथेलियल सेल्स विल आल्सो हेल्प इन इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। बस इतना ही है। Pallium means cloak or cover. In palliative care, every symptom is cloaked, so the patient doesn't feel it. The literally meaning of palliative is to elevate the suffering of a patient without curing. So the literal meaning of palliative care is to elevate the suffering without curing it. WHO definition of palliative care is an approach that improves the quality of life of the patient and their family. So palliative care is not the care of the patient, it is you have to take due consideration of the family facing the problem associated with the life-threatening illness. Though the prevention and the relief of suffering by means of early identification, impeccable assessment, and the treatment of pain and other problems, physical, psychological, and spiritual. Palliative care provides relief. तो पहले palliative में main important है pain. Palliative care provides the relief from pain and other distressing symptoms, affirms life regardless of dying is a normal process, intends neither to hasten nor postpone death, integrates psychological and spiritual aspects, offers a support system to help patient live as actively as possible until death, offers a support system to help family cope during the patient's illness in their bereavement. और इसका लास्ट वाला लिखना है यार, is applicable early in the course of illness in conjunction with other therapy, means it starts even if there is some metronome chemotherapy, anything is going, palliative care starts from there also. So principles of palliative care क्या है? The focus of care has moved from incurable patient to the curative patient. It often described as low tech or high touch. Okay, low tech and high tech. High touch, compassion in controlling force in palliative care. So इसके goals क्या है? Goal ये हमको याद रखना है. What are the goals of palliative care? ये important point है. एक तो अगर definition, इसके बाद सीधा इस पे आ सकते हैं. Goals are good symptom control, achieve the best quality of life for the patient and family, support the patient and the family in social, psychological, spiritual aspect of cancer care, to facilitate adjustment to many losses for their disease, to guide
for completion of unfinished business, death in a dignified way, and care of bereavement. Okay, so the patient to be cared for as a human being, all four cardinal dimensions of care, means physical, means pain, social, psychological, spiritual aspects are to be addressed. ठीक है, सो इसके बाद मेन है वही, सिंपल में बोलता हूँ, पहले आपको इवैल्यूएट करना है पेशेंट को, व्हाट इज द डिजीज, व्हाट इज द स्टेज, हाउ मच लाइफ इज देयर. ओके, तो ये यही बोल रहा, कुछ खास नहीं है. इसमें आता है फिर प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सिम्टम मैनेजमेंट. तो यूजुअली एट द एंड ऑफ अ लाइफ और इन द टर्मिनल स्टेज, patient will definitely have some symptoms. So how to manage a symptom, क्योंकि सब पेन लेके नहीं आएंगे, तो कुछ और भी हो सकता है. तो डॉक्टर रॉबर्ट टाउक्रॉस has given a scientific approach for effective symptom control. The management of any problem should be followed as 5 steps. First, evaluate what the patient is having, then explain, then manage, then monitor, attention to details. So first you will evaluate, मतलब वही history लेके cancer itself, what are the drugs, what is the cancer, what are the disability related. तो पहले evaluate करेंगे, then you will explain, okay, in simple terms, very important information for a proper compliance of treatment. And remember, you have to explain to the patient as well to attendants. Then manage, you form a plan of action, which is not curative for the cancer, but just for the management of symptoms. Okay, and you should be knowing the side effects of that treatment. Then monitor, okay, because sorghum you are working opioids, you have to monitor the side effects. Although it is difficult to predict optimum dose because they have underlying this organ dysfunction. So, but you have to keep monitoring regularly. Attention to details. The doctor should have an inquisitive mind and try to find out the actual cause and mechanism behind the symptom, which should repeatedly ask why. Okay. So again, I will tell, after the definition, after the goals of palliative care, then we will go to the Dr. Robert Towcross's scientific approach for a palliative management of a patient by giving 5 steps: evaluate, explain, manage, monitor, attention to details. Okay, फिर एक concept quality of life. The quality of life is the main central goal of whole palliative management. ये तो हम लिख सकते हैं, बस दिमाग में रखना है quality of life. Okay, so इसमें उतना खास नहीं है. एक और पॉइंट है, हमको ethical consideration भी अपने palliative care में रखना है. Ethical ethics is to be followed in palliative care as usual. Doctors have a responsibility of preserving life and also to relieve suffering. Okay, whether the disease becomes incurable, relief of suffering becomes more important. There are 4 cardinal principal ethics: respect for patient autonomy, beneficence, non-beneficence and justice. इसमें हमको एक याद रखना है, हमको फॉर एग्जाम्पल इसमें इसका देखना है, फैमिली में कुछ वर्क तो नहीं रह गया है, इंश्योरेंस रिलेटेड थिंग्स वो भी देखना है. तो यहाँ पे कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट. डबल इफेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट स्टेट्स दैट इफ measures are taken to relieve physical or mental suffering cause death of a patient. For example, you have given opioid, उससे इसका respiratory system में depress हो गया, मर गया. So because you should know the double effect what you are giving to the patient. Principle of double effect याद रखना है. So वही बोल रहा, the treatment both medical and surgical has an inherent risk. So you should be explain to the patient whatever treatment you are giving, it can cause problem also. That is the principle of double effect. Okay. चलते हैं आगे. Appropriate treatment, ये तो बस खास नहीं है. So another thing is psychological aspect.
So whatever you are explaining to the patient, to the attendant, it should be properly communicated. Patient and relatives want to have information regarding the diagnosis, prognosis, treatment, side effects, and source of support. So financially, everything should be communicated before you start palliative management. उनका इंश्योरेंस है नहीं है, ओके. Communication can be a verbal. ये इसमें बोलता है as we doctors we are very good in prescribing treatment, but we lack communication skills. So communication can be verbal as well as non-verbal. A large number of messages are conveyed to the patient by non-verbal communication like facial expression, eye contact, posture. Just common sense बोल रहा है, कुछ खास नहीं है इसमें. और breaking the bad news when the patient dies, how to tackle the situation. Okay. इसमें एक और इम्पोर्टेंट इसने दिया है ना, खास आप पढ़ना का नहीं है. So what are the things that you have to manage? Depression, okay. They have suicidal attempts, we have to manage that. Okay. Care of the relatives. So it is not, we will keep in mind while we read the answer if it comes. So it is not the patient only, you have to handle the relatives also, telling the relatives, involvement of patient care. Okay. And then it comes the interdisciplinary team approach. So whatever palliative care you are giving, it is not only by doctors, there are nurses, physios, other whatever department comes in palliative management, वो इसमें डाल देना है. So इसने एक बहुत अच्छा इसमें दिया है टीम प्रोसेस. Okay. So palliative care में आपको पता है when you institute a treatment, it should be a team driven. So how you will form a team? So इसने एक phases दिया है. Suppose a patient comes to you with a particular malignancy and you have to give a palliative care, you will form a team. So first forming, storming, norming and then performing. Okay. So ये बहुत important है इसमें. So palliative care is an interdisciplinary team approach and which is formed by forming, storming, norming and performing. So forming क्या है? In the first phase when the group is constituted, the group becomes dependent on the formal leader. It is important to have rules and regulations, define the task for each member. Storming. So जब अपने team बना लिया, what is the next thing? There conflict comes. In this phase, turbulence, critical behavior of others. सब कोई तो बोलेगा ये क्या चल रहा है, क्या बकवास चल रहा है. So have power struggles among the members. At difference in the opinion, competition may also emerge. So this is the second phase after you form a team. फिर third phase आता है. उसमें क्या आता है, सब आपस में दोस्त बन जाते हैं. Okay. Then comes norming. In this phase, when the members finally agree the rules, adapt to normal norm, they resist conflicts and develop a sense of belongingness, and they form this responsibility. Okay, exchange of opinion, feeling, and at the end, last phase is performing. In the final phase of development of a team, for the palliative management, the team develops a power for critical problem solving. Team members know their roles and regulations, what they have to do. Okay. So अभी तक ये जो पूरा बकवास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज अभी आगे एंड में रिवाइज कर दूंगा मैं ये. सो ये हो गया टीम फॉर्म. सो पैलिएटिव टीम क्या क्या है, उसमें क्या क्या होना. सो पैलिएटिव केयर टीम इज इंटरडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम. द टीम शुड हैव फॉलोइंग मेंबर्स. वो क्या क्या है? कंसल्टेंट इन पैलिएटिव मेडिसिन, a specialist palliative nurse, social worker, pastoral worker, therapist. The core team can also be formed by a physician and a nurse if sources are limited. Extended team क्या है? Psychologist, psychiatrist, chaplains, physiotherapist, occupation therapist, volunteers. Okay. So उसके बाद आता है हमारा मेन एम, वो है पेन. पेन में वही लिखना है जो राकेश ने पढ़ाया. अगर 10 नंबर का आता है, जो भी वो पेन में पढ़ा है वो सारा ठोक देना है इधर. पेन स्कोर, कैसे पेन मैनेज करोगे, कौन कौन सा ड्रग दोगे, क्या साइड इफेक्ट है, पेन लेडर बना दोगे. क्योंकि व्हाट द पैलिएटिव केयर मीन्स इज द मैनेजमेंट ऑफ पेन. वो उसका बेसिक कोर प्रिंसिपल है. ओके. वीक ओपियोइड्स, नॉन वीक ओपियोइड्स, जो भी इसने लिखा है वो यहाँ. इनफैक्ट पेन का क्वेश्चन ही यहाँ से टोटल इसने लिया, जैसे स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स, मॉर्फिन, फेंटेनिल. ओके. साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कितने नंबर का आता है. तो डरना नहीं है. 10 नंबर का है तो पेन को लंबा चढ़ा के लिख देना है. ओके.
सो उसके बाद सेकंड कंप्लेंट पैलिएटिव पेशेंट्स का होता है नौशा वोमिटिंग। तो नौशा वोमिटिंग जो याद आता है वो ड्रग लिख देना है। द फॉलोइंग ड्रग्स ऑफ वेरियस, मतलब रेडिएशन है तो ऑन्डानस्टेरॉन देना है, ओपियोइड तो हाइड्रोक्लोराइड देना है, गैस्ट्रिक स्टेसिस है तो मेटाक्लोप्रोमाइड देना है, रेज्ड आईसीपी तो डेक्सामेथासोन देना है, वेस्टिबुलर एपेरेटस रिलेटेड एंजाइटी तो साइक्लिन देना है, एंजाइटी है तो लोराज़ेपम देना है। तो उसके बाद तीसरा हमें क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर ये हेडिंग पे आप 5 या 10 पेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेन में आप कम से कम 2-3 पेज तो लिख ही दोगे। नौशा वोमिटिंग 1 पेज, उसके बाद उनको कंप्लेंट पैलिएशन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में लिखना क्या है, इसमें लिखना है कि इंसिडेंस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हमें क्या लगता है कि कभी ऑब्स्ट्रक्शन से सर्जरी करना, ये बोलता है the usual treatment of obstruction is surgery, but considering the patient's disease and the status, prognosis, performance, it is to be decided. The potential mortality, morbidity associated with surgery had to be weighed against quality of life. Some surgeons may consider self-expanding metallic stents, तो palliative management, surgical end में, क्योंकि ये already terminal ill होते हैं, okay? So वो सर्जरी का नॉन सर्जिकल मेजर्स में प्रेफर करना है। फिर वही पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ओपियाइड देना है, प्रोकाइनेटिक देना है, हेलोपेराडोल देना है। द पेशेंट इज कंटिन्यूअसली अब्डोमिनल कोलिकीपिन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, ओपियाइड देना है, एंटीस्पाज्मोटिक देना है, प्रोकाइनेटिक नहीं देना है। ओके, फिर उसके बाद उसकी कंप्लेंट होगी ब्रेथलेसनेस, वो देखना है किससे हुआ, तो कंज्यूम मेजर्स वैसे ही देना है। ओके, ऑक्सीजन ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बाकी चीजें। ओके, ये हो गया आपका पैलिएटिव केयर। पहले तो उसका डेफिनेशन, ओके, फिर गोल्स क्या है, कहाँ गया, चलो प्रिंसिपल ऑफ पैलिएटिव मैनेजमेंट क्या है, गोल्स क्या है, वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सिम्टम कैसे इवैल्यूएट करोगे जब पेशेंट, इसके रॉबर्ट टॉक्रॉस के मैनेजमेंट सिम्टम्स प्रोटोकॉल्स क्या है। क्वालिटी लाइफ इज द मेन और कंसिडरेशन, इथिकल इश्यूज कंसिडर करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट हमें दिमाग में रखना है। appropriate management देना है, whatever it is there. Communication is one more armamentarium in this psychological aspects. तो उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके एक टीम फॉर्म करनी है, ठीक है। टीम फॉर्म करने में वही याद रखना है, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड देन परफॉर्मिंग। पैलिएटिव केयर में कौन कौन होना चाहिए वो देखा, उसके बाद इंस्टीट्यूट करना है क्या क्या कंप्लेंट है अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये तो उसके बाद हॉस्पाइस कहाँ है भाई? हाँ, हॉस्पाइस भी तो इसी में आता है। वो अलग है, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। मतलब उसमें भी यही है ऑलमोस्ट। इसमें एक और क्वेश्चन है एंड ऑफ लाइफ केयर, ठीक है। तो एंड ऑफ लाइफ केयर में हॉस्पाइस है, पर वो मैंने नहीं पढ़ा अभी, उसमें क्या है आता है। आई थिंक यही है क्या, एंड ऑफ लाइफ केयर ही हॉस्पाइस है क्या? क्वेश्चन तो इस पे आया है एंड ऑफ लाइफ केयर पे सीधा। नहीं तो पैलिएटिव केयर में हॉस्पाइस लिखना है कि एंड ऑफ लाइफ केयर में हॉस्पाइस लिखना है, ये पूछ रही हूँ। दोनों अलग है। हॉस्पाइस इज समथिंग वेयर लाइफ स्पैन इज लेस देन 6 months। एंड ऑफ लाइफ केयर इज द लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ऐसा बोलता है वो। इसमें तो विद इन 12 months है डेफिनेशन, ये इसकी जो डेफिनेशन। सो अभी ये पैलिएटिव केयर तो समझ लिख सकते हैं ना, अभी तो एंड ऑफ लाइफ पे आया क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। So a patient is said to be approaching end of a life when he is likely to die within 12 months. This includes people whose death is expected within hours. एक तो 12 month भी है और वो भी है whose death is expected within 12 hours or days, and those in advanced and progressive and incurable conditions. Okay, फिर वही बोलता है no man is immortal, everyone is expert to good. अब ये देखना है, the dying person should get the necessary care. The international core elements for best care of dying person has 10 principles for best care for dying person. So international core elements क्या है? The patient should be recognized that he is in last few days. तो पहले हमें recognize करना है, okay? By multi-professional team. ऐसा नहीं कि वो ठीक है तो हम बोल दें चलो। Minimum doctor and nurse documented by
जो नया चैप्टर है ना, नया चैप्टर सो हम पढ़ रहे हैं 10 these international core elements for best care of a dying person. वो 10 प्रिंसिपल्स क्या है इंटरनेशनल कोर एलिमेंट्स? पहले तो रिकॉग्नाइज करना है कौन मर रहा है, ठीक है? वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा? डॉक्टर एंड नर्स, डॉक्यूमेंटेड बाय सीनियर डॉक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट केयर. तो हम किसी का कैंसर ट्रीटमेंट, उसका रिकरेंस आ गया, अब हमको पता है कि रिकरेंस से ये ज्यादा देर बचने वाला नहीं है, तो ये एंड ऑफ ए लाइफ केयर में भेजना है. वो कौन सर्टिफाई करेगा? ट्रीटिंग डॉक्टर यूजुअली. कम्युनिकेशन of recognizing of dying should be shared with the patient when possible and with those important to them. तो patient को भी और उसके जो relative हैं उन दोनों को communicate करना है. The dying person and the relative care or advocate should have opportunity to discuss their wishes, concerns, feelings, beliefs, values, etc. with a person trained to handle such discussions. Anticipatory prescriptions for symptoms that can be expected should be available. So पांचवा क्या है इसका? Clinical interventions are reviewed in the best interest of the individual of the patient. A review of hydration needs including commencement, continuation or cessation of clinically assisted artificial hydration. A review of nutrition needs including continuation, cessation of clinically assisted artificial. So whatever जो चीजें जरूरी है वो assess करके तभी देनी है. A full discussion plan of care including symptom management, comfort care with the dying person where possible and deemed appropriate, and with those important to them, relative or care or advocate. A regular assessment of dying at least 6 hourly. A review by a multi-professional team at least 24 hours. Okay. Care of dying person and those important to them, relative or carer or advocate immediately after death. Okay. So, what are the signs or symptoms of imminent death? Face may be grunting, profound weakness, patient is bedbound, decrease intake of food, fruits, decrease urine output, pulse वही लिख देना, disorientation, interacts less with the people. These are the signs of impending. Okay. So यही है, फिर कुछ खास नहीं है. कुछ importance of proper communication जो मैं बोला, even in palliative care of end of a life care, communication is important. Okay. How you will communicate with the attendants. इसमें लिख रहा है they have a fear of facing death. Okay. So इसमें ये कम्युनिकेशन वाले का एक नया चैप्टर है डेविटा में. पुराने डेविटा में था कि नहीं पता नहीं, नए डेविटा में कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है. What we are communicating with the patient and what we are communicating with ourselves, ऐसे करके हेडिंग है. मतलब of a dying person or generally? जनरली. ओके ओके. अभी वो पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर का. सो असेसमेंट ऑफ पेशेंट नीड है इसमें, फिजिकल नीड है, साइट ऑफ पेन, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कुछ याद रखने वाला. एंड ऑफ लाइफ केयर में ये 10 है. साइंस सिम्टम क्या है? कम्युनिकेट करना है. असेसमेंट ऑफ पेशेंट नीड है, वो भी जब जरूरी हो तो तब. साइकोलॉजिकल नीड्स. सो इसमें एक्चुअली इसमें मार्क किया था मैंने, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट. हाँ, इसमें क्या बोलना है इसको इम्पोर्टेंट है. साइकोलॉजिकल नीड्स है. पेशेंट विद द मोस्ट फियर अबाउट द इंटरेक्टेबल सिम्टम लाइक पेन, और इसको बोलना है. अनफिनिश्ड बिजनेस इन द फैमिली है पेशेंट का, तो वो भी डिस्कस करके वो सॉर्ट आउट करना है. Sadness as they have leaving the loved ones and the anxiety about how will they cope. Care of dying person वही है, bowel bladder nursing care चाहिए, mouth care चाहिए. ठीक है. मैनेजमेंट खास नहीं है इसमें, अगर जो देखे मोटा मोटा तो वही है. इसमें यहाँ डेथ रेटल में एक पॉइंट है. There is a gurgling, bubbling sound made by the patient at the terminal stage caused by secretion of back throat. It's very distressing. And
इसमें क्या कर सकते हैं, रिपोजिशन एट्रोपिन दे सकते हैं, एजिटेशन के लिए एलोपेराडोल दे सकते हैं। ओके, हाँ ये है, इसमें कहाँ गया वो एक और पॉइंट मैंने देखा था, जो अटेंडेंट्स होते हैं, हाँ फेजेस ऑफ ग्रीफ। फेज ऑफ ग्रीफ, जो ग्रीफ होता है एट द एंड, द अटेंडेंट्स एलिजाबेथ कुबर-रॉस described 5 phases that a bereaved go through. First they deny, they get angry, they then bargain, they go to depression, then they accept. Okay, this is the end of the story. इसको डैबडा बोलते So- थे, डैबडा। डैबडा, दिखाना फिर से। so ये वो डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, डैबडा। ये एमसीक्यू के टाइम पे इसकी सीक्वेंसेस आती थी। ओके, सबसे ये है लास्ट end of में a life एक्सेप्ट की- करता है। पहले वाला ए जो है वो एंगर है, दूसरा सबसे लास्ट वाला एक्सेप्ट है, और फर्स्ट में डिनायल याद रहेगा, तो सेकंड वाला जो डी है वो डिप्रेशन है। ओके, सो ये हाउ टू कोप विद द रिएक्शन ऑफ द फैमिली। सो मोटा मोटा एंड ऑफ लाइफ केयर में 10 ये प्रॉब्लम्स है, साइंस है, थोड़ा ज्यादा ट्रीटमेंट हमको नहीं दे, जस्ट सिम्टोमेटिक देने हैं, पेन वेन मैनेज करना है, डेथ रेटल, बाकी पेन और ग्रीफ को मैनेज करके बंद कर देना है, और कुछ फैमिली इशू बाकी चीजें वो सेटल करके। हाईलाइट वाले का कल स्क्रीनशॉट करके भेजना। ठीक है।